Okay, good. So Arya has put the attendance also. Okay. So Arya, just take the notebook with you. Okay. So you need notebook because few questions you are going to solve, few questions I am going to solve. Okay. So just keep your notebook and pen with you and keep responding in the chat box. So before that, first let me know whether I am audible to you and my presentation is clearly visible to you, and network at your side is also very good. Okay. So if you can hear me properly, then we will continue. Otherwise, we won't. Okay. So let me know how is your network. Is it fine? Can you hear me properly? Because you are the only one in today's class. Okay, so network is slow, but my voice is clear to you, and I think it is getting little delayed just because of the network. Okay, but if my voice is clear to you, then I have to continue. Okay, so we can continue. I think now. So see, when I'm writing and when I'm speaking, uh, is this audio and video is in sync? मतलब कि जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ, ओके सूरज यू आर लेट, ठीक है। सो जब मैं बोल रहा हूँ और जब मैं लिख रहा हूँ, सो मैं मतलब आपको दोनों चीजें एट द टाइम दिखाई भी देनी चाहिए और भी सुनाई भी देनी चाहिए। ओके, सो आई एम जस्ट टेस्टिंग हियर। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर ए, नाउ आई एम राइटिंग ए, बी, एंड नाउ आई एम राइटिंग सी। तो मुझे बताना कि जब मैंने ये तीनों लेटर्स लिखे ए बी एंड सी, तो तभी आपको ये सुनाई दे रहा था, जब दिखाई भी दे रहा था, यस और नो? ऑडियो एंड वीडियो इन सिंक। ओके, सूरज के लिए तो ठीक है। सूरज, टेक योर नोटबुक एंड पेन विथ यू फॉर टुडेज लेक्चर। आर्या, ऑडियो और वीडियो साथ में दिखाई दे रहे तुम्हें? नो रिप्लाई फ्रॉम आर्या एट। आर्या प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, सो फाइन, ठीक है। आर्या इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, देयर माइट बी अ नेटवर्क इशू एट हर साइड। ओके, सो Suraj, I hope I'm audible to you. So, without wasting much of a time, we will start with our examples. Okay. So, this is the very easy question. First question: f of x दिया है, g of x दिया है, and what we have to do? We have to just add them. अभी f of x और g of x की addition करनी है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 3x plus 6x क्या बनेगा? 9x, एंड प्लस 5 - 1 बनेगा 4। सो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर, ए का आंसर क्या आएगा? ओके, सूरज लेफ्ट। फर्स्ट का आंसर आएगा 9x minus, no sorry, plus 4. Okay, so this will be the answer for the first one. 9x plus 4, 9x plus 4 is the answer of first one, A. Okay, my voice is not clear for Arya. What about you, Suraj? Is it clear? My voice is clear to you, Suraj? Okay, so I think Arya, there might be a issue at your network. Okay, so you just check your network and try to be in a good network area so that you'll be able to hear me properly. And today's lecture is very important, so make the adjustment right now. Okay, so this is the answer for the first one. क्या करना है? सिर्फ एडिशन करना है। 3x plus 6x becomes 9x, and plus 5 minus 1 becomes plus 4. So 9x plus 4 is the answer of A. Now second में क्या करना है? f of f minus g of 2, मतलब कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है और उसे x की जगह पे हमने 2 रख देना है। नाउ 3 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? -3x। सी, इस 3x में से ये 9x 6x चला गया तो बचेगा -3x। इस 5 में से, 5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम -1 करते हैं, तो इट इज माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एंड इट शुड बी 6। सी, दिस इज प्लस ऑलरेडी, and if we are subtracting this from this, that means we are actually adding this. Okay, so this should be the
एफ ऑफ सॉरी एफ माइनस जी। सो इसमें टू टू रखना है, तो टू टू रखने के बाद में क्या आएगा आंसर? जीरो आंसर आएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज 2 will be 6 -6 and -6 plus 6 is 0. Okay, so 0 is the answer for the second one. 0 is the answer for the second one. Okay, now third one में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। हाउ? 3x plus 5 and 6x minus 1। तो 3x को पहले 6x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 3x को -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 5 को 6x के साथ में, और उसके बाद में 5 को -1 के साथ में। इस तरह से अभी मल्टीप्लीकेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बराबर। नाउ डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन से डिवाइड करना है, दैट इज द डी, आवर डी। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सो आई एम नॉट टेकिंग मच डीप इनटू इट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो एफ दिया है, फंक्शन दिया है, उसका डोमेन और कोडोमेन दिया है, यहाँ पे जी दिया है, उसका भी डोमेन और कोडोमेन यहाँ पे दिया है। ओके, सो द फर्स्ट लाइन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द सेकंड लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी यहाँ पे 2,3 एक ब्रैकेट में दिया है, 4,6 एक ब्रैकेट में दिया है, एंड 5,2 एक ब्रैकेट में दिया है। दिस इज फॉर फंक्शन एफ। ओके, फंक्शन एफ के लिए ये डेटा हमें दिया है। सो इस डेटा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो इफ यू सी, अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो फर्स्ट आप क्या लिखते हैं? अगर आपको ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिखना है तो फर्स्ट आप लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन वैल्यू ऑफ वाई। करेक्ट, एक्स और वाई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो एक्चुअल में एक्स इज व्हाट? एक्स इज आवर इनपुट, एक्स इज आवर इनपुट, एंड वाई इज व्हाट? वाई इज आवर आउटपुट। वाई को ही हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, बराबर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड एक्स इज इनपुट। सो यहाँ पे ये जो पहली वाली वैल्यू है 2, 4 एंड 5, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन सी? 2, 4 एंड 5, ठीक है, फॉर फंक्शन एफ। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वाई? वैल्यूज ऑफ वाई आर 3, 6 एंड 2। सी 3 इज वाई, 6 इज ऑल्सो वाई एंड 2 इज ऑल्सो वाई। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू आपको बता दी, तो इसका मतलब ये होता है फंक्शन एफ इस तरह का फंक्शन है जिसमें अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमें उस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करें तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। एंड इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 5, then we'll get the value of y or the output as a 2. Okay, so this is the meaning of this bracket, or we can say this function f. Okay, now let's come to the second function, that is g। जी के लिए भी सिमिलर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। सो अगर आप एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी आउटपुट की? वाई, वाई यानी कि 4 आएगी। अगर आप इनपुट 3 देते हो, मतलब कि एक्स की वैल्यू 3 रखते हो, तो आपका वाई एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 4 आएगा। सिमिलरली एक्स अगर 6 रखते हो तो वाई या फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 आएगा। सी, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। सो ये हमें चीजें समझ में आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट g of f of x। g of f of x मतलब g imposed f imposed on g, इस तरह से हमें ये फंक्शन निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो, एक्चुअल में हमें क्या निकालना है? g f of x निकालना है। गुड, सी दिस इज लाइक दिस, हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मीनिंग जो है ये यही होता है। सो इसकी जो वैल्यू है वो इसी फॉर्म में आनी चाहिए कि अगर हम ये इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट आएगा। ओके, नाउ सी, अगर मान लो कि आप इनपुट देते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 देते हो इनपुट, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 इनपुट दे रहे हो तुम। तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 देने के बाद में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताना। एक्स इज इक्वल्स टू मैंने 2 दिया है, सी एक्स इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए, कौन बताएगा? 4 आएगी? नहीं, 4 नहीं आनी चाहिए। सी, दिस इज फॉर जी। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं ना हम, सो फंक्शन एफ के बारे में सोचना पड़ेगा हमें, इस ब्रैकेट के बारे में सोचना पहले हमें, ठीक है। सो इफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए, समझ रहे हो? सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 रखी है,
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। सूरज समझ में आया? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें? 3 मिली। सी अकॉर्डिंग टू दिस, if I put this as a 2, so f of 2 is nothing but 3 here. See, this is the value of x and this is the value of y. समझ रहे हो? So when we put, no, yes, I'm just now talking about f only. Okay, so यहाँ पे हमें क्या मिला? What we have got? We have got 3. Now this function has become like this, g of 3. सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो ये जी ऑफ 3 बन गया। अभी जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, बताइए? जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 3? ऑब्जर्व द फंक्शन जी एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 3। अगर हम एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? 4। वेरी गुड। सी यहाँ पे यू कैन सी जी ऑफ 3 जो है वो 4 मिला। तो पहली वैल्यू हमें क्या मिली? 4 मिली। फॉर व्हाट? x इज इक्वल्स टू 2। सी x हमने 2 रखा है, पहले 3 नहीं रखा है। हमने यहाँ पे 2 रखा तो f ऑफ 2 जो है वो बन गया 3 एंड देन g ऑफ 3 बन गया 4। सो इस फंक्शन के लिए, किस फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो आउटपुट क्या आता है? 4 आता है फॉर दिस फंक्शन और दिस फंक्शन। समझ रहे हो? यहाँ पे हमने 2 रखा तो 3 आया, g ऑफ 3 की वैल्यू होती है 4। सिमिलरली नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 4, सो y या इस ब्रैकेट में वैल्यू क्या आएगी? 6 आनी चाहिए, बराबर। सो 6 विल बी हियर। नाउ g ऑफ 6 क्या होता है? सी इसको मैं मिटा के क्या बना दूंगा? g ऑफ 6, g ऑफ 6 इज व्हाट? 2। वेरी गुड। सी 2। सो जब हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो हमें y की या फिर हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है, बराबर। नाउ फॉर द लास्ट इनपुट दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 रख दो आप। x इज इक्वल्स टू 5 अगर आप यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू क्या मिल रही है हमें? g ऑफ 2 मिल रहा है। सी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 होता है, f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो g ऑफ 2 क्या है हमें? g ऑफ 2 हमें देगा 4। मतलब कि जब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 4 मिलना चाहिए। सो दिस इज आवर आउटपुट, दिस इज द आउटपुट ऑफ फंक्शन g ऑफ f ऑफ x। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2,4 4,2 and 5,4. Okay, so this will be g of f of x. Okay, so write it down and I hope you understood this. Arya and Suraj, tell me in the chat box, have you understood this? Yes, good. So shall I wipe out this? Okay, shall I erase this? Okay, good Arya, very good. Shall I erase this or are you writing? Okay, yes, I'm ठीक है। सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें? सी एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, देन फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले निकालना है हमें फॉर द फंक्शन ए। ओके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? ये जो जी ऑफ एक्स दिया है ना हमें, तो इस एक्स की जगह पे हम इस कंप्लीट फंक्शन को रख देंगे। सो वी विल गेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो मैं आपको एक कैलकुलेट करके बताता हूं, बाकी जो है वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है? सो सी एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? 2x³ 2x³ प्लस 3 है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। मैं एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। नाउ एफ ऑफ जी अगर मैं निकाल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की कंप्लीट वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो 2 स्टेज हियर एंड एक्स की जगह पे रहेगा 5x माइनस 2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 3 एज इट इज।
Okay, so solve this. How we can solve this? A minus b whole square, that results in a square, that is 5. 5 square is 25. 25 x square minus 2ab. 2ab means 20x, is it? 20x plus what? 4. B square is 4 na, plus 3. Which 2 is multiplied? 2ab ना. सी दिस फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर कर रहे हैं हम. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इज इट? सो उसमें का 2ab बोल रहा था मैं. ये जो 2 है ये यहाँ पे अभी भी वैसा का वैसा ही है. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू एक्सपैंड दिस ब्रैकेट, considering this as a, this as a b and the whole square. A minus b whole square, that is a square. A is our 5x, so a square is 5 square is 25, x square is x square. A square minus 2ab. 2ab means, see, 5x multiplied by 2, that is 10, 10x बराबर. और 2ab, अभी ab का तो मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो 20x and b square, that is 4. Second step 2. This are you talking about this? So this is the 2 ना. This is given in the example. See, यहाँ पे अगर तुम देखोगे एग्जाम्पल थर्ड में, तो ये 2 हमें ऑलरेडी दिया है ना x स्क्वायर के साथ में. ठीक है, हम सिर्फ x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू रखेंगे. ओके, हम सिर्फ x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू रखेंगे, और वो जो उसका मल्टीप्लायर है 2, that will be as it is. That is going to be as it is. That is going to stay as it is. Okay, we are not going to change that. We'll just put g of x in place of x only. x की जगह पे x स्क्वायर था, x स्क्वायर की जगह पे हमने ब्रैकेट रख दिया और उसको स्क्वायर कर दिया. Now multiply this 2x square, the 2 multiplied by all this bracket. What it is going to be? It is going to be 50x square minus 40x plus 11. So this is going to be 8 and plus 3, that is 11. Okay, so you can solve this like this. This way you can solve this kind of example. Now, okay, so one more example I'll take, and after that we'll skip to the next question. Okay, so मैंने ये solve कर लिया. अभी ये आप solve कीजिए, g of f of x, f of x solve कीजिए. मैं g of x solve करके देता हूँ. Okay, so पहले तो g of x लिखिए. g of x क्या है? g of x is equals to 5x minus 2 है. ओके, that is g of x. मैं यहाँ पे सिर्फ g ही लिखूंगा. g of x is equals to 5x minus 2 है. तो g of x रखना है, मतलब कि g में ही और एक g रखना है. तो किस तरह से रखेंगे हम? इस x की जगह पे, ये 5 में एज इट इज रख देता हूं. इस x की जगह पे फिर से हमें वही फंक्शन रखना है, दैट इज 5x minus 2. ओके, और ये जो -2 है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे. सो दैट बिकम्स g of x. So that is 25x minus 12. How 12? 5 multiplied by 2 is 10, and 10 minus 2 is minus 12. So 25 minus x will be the answer of this D, g of x. अभी f of x अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे? You will just put value of f of x inside the function f of x. How? See, ये f of x है. इस f of x में इस x की जगह पे आपको फिर से यही फंक्शन रखना है. इस x की जगह पे यही फंक्शन रखना है और कैलकुलेट करना है. दैट इज गोइंग टू बी योर f of x. g of f of x कैसा कैलकुलेट करेंगे आप? ये आपका g of x है. g of x में आप इस x की जगह पे ये फंक्शन रखेंगे, दैट इज f रखेंगे आप. सो यू विल फाइंड g of f of x. ओके, सो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है? Is it, students? Okay, good. Now verify that f and g are inverse functions of each other. So inverse function निकालने के लिए पहले तो तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए किस चीज में? आपको f of g of x निकालते आना चाहिए. ओके, f of g of x निकालते आना चाहिए.
एंड g ऑफ f ऑफ x आपको निकालते आना चाहिए। ओके, सी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड फॉर प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल, एंड दिस एग्जांपल इज दैट। ओके, सो फाइंड आउट बी एंड सी and tell me the answer for your B and C. Okay, if you cannot type in your chat box, then please you can turn on your mic also. Okay, B और G की आप सॉरी B और C की आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका हो गया है। ओके, देन वी विल गो टू दिस क्वेश्चन। निकालिए, पहले बी निकालो, जी ऑफ एफ निकालो एंड राइट इन द चैट बॉक्स। सॉल्व क्विकली इन योर नोटबुक एंड राइट इन द चैट बॉक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई विल बी बैक इन 30 seconds. ट्राई करो, कीप ट्राइंग, इट इज वेरी इजी। ओके, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। ओके, सूरज हैज गॉट समथिंग। 10x square plus 13 is Suraj's answer. Okay, so let Arya give the answer, then we'll verify whether your answer is correct or not. Arya, I'm waiting for your answer. Arya, can you find it? So, okay, see, Arya is not responding. Maybe she's having some network issues. सूरज, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, सो तुमने किस तरह से निकाला ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका आंसर सही आया है सो यू हैव गॉन थ्रू अ करेक्ट प्रोसेस। ओके, सो तुम्हें समझ में आ गया है कि जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। ओके, सो दिस इज नाउ नॉट कंफ्यूजिंग पार्ट फॉर यू। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। सो मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको ये आना चाहिए किस लिए बोला कि देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड f of g of x. Okay, and that should come is equals to x. It should come is equals to x, and then we have to find g of f of x, and that should come equals to x. अगर ये दो चीजें आती है, ये दो चीजें सेटिस्फाई होती है, then we can say that these functions are inverse functions of each other. Then if these two conditions are satisfied, then we can say these two functions are inverse functions of each other. Now for first example, we will try whether these two are inverses of each other or not. Okay, so first of all, f of x is this, g of x is this. So what we will find out, we'll find out first of all
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब मुझे क्या करना है, एफ में जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है। किस तरह से रखूंगा मैं, अभी एक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा डायरेक्टली 4x+7 और यहाँ पे -7 सी। मैंने x की जगह पे डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख दी डिवाइडेड बाय 4। सो दिस +7 -7 गेट्स कैंसल्ड। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग, 4x divided by 4. Yes, Arya, yes, please you can rejoin, like yes, you can rejoin class. Okay, let me just put okay, so she's heard, I think. Okay, so what is the result of this x, isn't it? So first condition is satisfied, f of g of x क्या आया हमारा, x आया, लेकिन that is not enough. Okay, so see, पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन हमें दूसरी भी तो कंडीशन चेक करनी है. विच कंडीशन इज दैट, g of f of x हमें निकालना है, दैट शुड ऑल्सो कम एज x. नाउ g में मैं क्या करूंगा, f of x की वैल्यू रख दूंगा. सो इस x की जगह पर मैं कंप्लीट लिख दूंगा, तो क्या रहेगा, सी 4 एज इट इज विल बी देयर, एंड x की जगह पे रहेगा x -7 डिवाइडेड बाय 4 एंड +7. ओके, सो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x -7 +7. सो -7 +7 अगेन गेट्स कैंसल्ड. सो व्हाट इज रिमेनिंग, x. मतलब f ऑफ g ऑफ x भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, एंड g ऑफ f ऑफ x भी क्या आ रहा है, x आ रहा है. दैट मीन्स these two are inverse functions of each other. Okay, so these two conditions we must verify, and then we can say that these two functions are, whether these two functions are inverse of each other or not. Okay, so this was the first example. For your understanding purpose, I'll take another example, and then I'll leave rest of the questions for you. Now let me just take this question. Okay, so see, पहले क्या निकालेंगे हम, एफ ऑफ जी निकालेंगे. एफ ऑफ जी के लिए किस तरह से निकालना है, एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू, मुझे इस एक्स की जगह पे ये पूरा कंप्लीटली रखना है, तो मैं डायरेक्टली रख देता हूं. सी, क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट ऑफ x-4. अभी ये एक्स क्यूब है, तो इस ब्रैकेट का भी हमें क्यूब करना पड़ेगा, और +4, बराबर. सो ये क्यूब रूट है जो है, और ये जो क्यूब है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. So it will remain x -4 + 4, that is 4x. Is it? x -4 + 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा x. मतलब पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, f ऑफ g ऑफ x जो है वो x के बराबर आ गया. नाउ g ऑफ f ऑफ x निकालना है हमें. क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. g ऑफ, sorry for the interruption, there was someone calling me. ओके, g ऑफ f ऑफ x की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें क्या करना है, सी, g ऑफ x में हमें f ऑफ x को रखना है. किस तरह से रखेंगे, ये कंप्लीट क्यूब रूट जो है वो यहाँ पे रहेगा, ये तो यहाँ पे रहेगा ही, और इस x की जगह पे हमें ये रखना है. सो x³ +4 -4. okay, so +4 -4 will get cancelled. so इस ब्रैकेट में क्या रहेगा, सिर्फ x³ रहेगा. see, this is cube root of x³, that is x. That means our both the conditions are satisfied. F of g of x is also x, and g of f of x is also x. That means these two are inverse functions of each other. Okay, so we should solve like this. Okay, I should tell again. ठीक, no problem, I'll tell again. See, what are the conditions, have you understand what conditions should be satisfied in order to have those two functions as a inverse functions of each other. मतलब कि कोई भी दो functions अगर एक दूसरे के inverse है, okay, if any two functions are inverse functions of each other, then they satisfy two conditions. Okay, which two conditions? First condition is f of g of x will be x,
and g of f of x will be x. So these are the two conditions. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओके, बी बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको एक्सप्लेन करनी है. ओके, आई एक्सप्लेन दैट. ठीक है, तो सी ये g ऑफ x है. g ऑफ x में हमें क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यू रखनी है. तो f ऑफ x की वैल्यू हम किस तरह से रखते हैं, सिर्फ इस x की जगह पे ये कंप्लीट फंक्शन हम रख देते हैं. इस x की जगह पे हम ये कंप्लीट फंक्शन रख देते हैं. सो g ऑफ f, तो मैं पहले ये फंक्शन कंप्लीटली लिख लेता हूं. ओके, सी एक्स क्यूब, सॉरी x माइनस 4 है ये फंक्शन एक्चुअल में. ओके, सी दिस इज द फंक्शन आई हैव रिटन. नाउ इस x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा. सो मैं इसको मिटा देता हूं और इसकी जगह पे इसे लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस 4 एंड माइनस का जो सिंबल है वो एज इट इज रहेगा यहां से. सो ये जो है ये +4 और ये -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, एक्स ही होगा ना, बराबर. yes, so it will be equal to x, and that's why these two functions are inverse functions of each other. so try this at home. अभी मत ट्राई करना, घर पे ट्राई करो. ओके, अगर नहीं आता है तो मुझे लिख के भेजो इसमें अपने क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में. ओके, now let's come to the fifth question. check the following functions have inverse function. if as, then find the inverse function. see, अभी एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है हमारे पास. क्या प्रॉब्लम है कि हमें इस यहाँ पे चेक करना है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं. अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हमें फाइंड आउट करना है. पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो फंक्शन हमें दिए गए थे और हमें सिर्फ ये डिटरमाइन करना था कि पहला फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन का इनवर्स है या फिर नहीं, या फिर दूसरा फंक्शन जो है वो पहले का इनवर्स है या नहीं. मतलब दो फंक्शन दिए थे, वो एक दूसरे की इनवर्स है या नहीं, ये हमें डिटरमाइन करना था. ओके, सो दैट वाज ए इजी जॉब. सो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन थी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, वो हमने ट्राई कर लिया. लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसा है कि इस क्वेश्चन में हमें एक ही फंक्शन दिया गया है. इफ यू सी द एग्जांपल 1, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर. तो एक ही फंक्शन है और इस एक फंक्शन को हमें टेस्ट करना है कि इस फंक्शन का कोई इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या, इसका एग्जिस्ट हम सॉरी इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या. अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो इसके लिए कंडीशंस अलग रहेगी. सी पिछले एग्जांपल्स में और इसमें डिस्टिंग्विश करना आप सीख लो. इसमें जो कंडीशन है वो अलग रहेंगी. अभी किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशंस होती है. अभी ये दो कंडीशन जो है वो पिछला जो फंक्शन है उससे कंप्लीटली अलग कंडीशन. ओके, उसे उससे उससे कंप्लीटली अलग कंडीशन है. कैसी कंडीशन है, पहली कंडीशन जो है, वी हैव टू चेक वेदर दिस इज अ वन वन फंक्शन और नॉट. okay, whether this is a one one function or not, and the second condition is whether this is a onto function or not. अगर ये गिवन फंक्शन वन वन फंक्शन भी है और onto फंक्शन भी है, तो इन दैट केस उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है और हम इस उसको इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. समझ में आया. वन वन टेस्ट करना है, उसके बाद में onto टेस्ट करना है. अभी वन वन टेस्ट करने के लिए दो ट्रिक्स है. सी मैं जो बोल रहा हूं वो आप शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लीजिए नोटबुक में. किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स हमें चेक करना है whether it is exist or not, then we have to test two condition, whether the given function is one function and it is onto function also, onto function also. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो कैसे चेक करना है इन दो कंडीशन को, इसका ये फंक्शन ऑन वन वन भी है और ऑन टू भी है. तो मैं वन वन के लिए दो ट्रिक्स बताऊंगा. तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सी यहाँ पे आप x की कोई भी दो वैल्यूज रख दीजिए. ओके, यू कैन पुट एनी टू वैल्यूज. ठीक है, सो विच वैल्यूज आई से -1 और 1 रखो. मोस्टली ऐसे ही आपको वैल्यू रखना है, -1 और 1 वैल्यू रख लीजिए. सो ये वैल्यू रखने के बाद में आपका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा. सी दोनों वैल्यूज के लिए आंसर क्या आना है, 5 ही आना है, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो 1 होगा और 5 1 जा 1 5 1 जा 5 रहेगा, तो आंसर 5 आएगा. अगर आप x की वैल्यू
1 रखते हो तो x की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या आएगा, फिर से 5 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे दो इनपुट के लिए, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। समझ रहे हो? तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन का क्या मतलब है कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट नहीं मिल सकता। दो इनपुट अगर आप दे रहे हो, दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट अगर आप दे रहे हो, सो टू डिफरेंट आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड। सी, टू, इफ two inputs are given, two outputs should be there. If three inputs are given, three outputs should be there minimum. समझ रहे हो? So this is called one one function. मतलब हर एक वैल्यू के लिए उस फंक्शन की वैल्यू अलग रहनी चाहिए। so कौन से फंक्शन नॉर्मली वन वन नहीं रहते हैं? एक्स रेस टू टू, एक्स रेस टू फोर, एक्स रेस टू सिक्स, एक्स रेस टू एट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इस टाइप के जो फंक्शंस रहते हैं, वो वन वन फंक्शंस नहीं रहते हैं। समझ रहे हो? अभी एक्स स्क्वायर वन वन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वन वन फंक्शन एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स की अगर आप वैल्यू -1 भी रखोगे, 1 भी रखोगे, तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर आप एक्स की वैल्यू -2 या फिर +2 रखेंगे तो भी आंसर आपका 4 ही आएगा। -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, और 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। मतलब वैल्यू तो हम दोनों अलग रख रहे हैं। -1 and +1 आर द टू डिफरेंट वैल्यूज, बट द आउटपुट इज सेम। सो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो अभी वन वन फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए हमें हर एक अलग अलग आउटपुट मिलना चाहिए। सो दैट इज वन वन फंक्शन। सो एज यू कैन सी, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। 5x² इज नॉट अ वन वन फंक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो अगर ये वन वन फंक्शन है ही नहीं तो हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन से इनवर्स ऑफ दिस फंक्शंस डू नॉट एग्जिस्ट। पहला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x², इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। वन वन यानी कि समझ लो ना, एक इनपुट उसके लिए अलग आउटपुट, दूसरा इनपुट दूसरा आउटपुट, तीसरा इनपुट तीसरा आउटपुट। दो अलग अलग इनपुट के लिए एक ही आउटपुट नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है। समझ रहे हो सूरज? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वन वन फंक्शन? Okay, yes, Arya, you also have to respond. Okay, so this is one one function. Now we will move further. So this is not a, oh, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, we know that. अभी लेट्स कम टू दिस। अभी यहाँ पे x है ही नहीं, x की वैल्यू ही नहीं है, तो हम x की वैल्यू पुटअप क्या करेंगे? मतलब कि x की कोई भी वैल्यू के लिए आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 8 ही आ रहा है। यहाँ पे x नहीं है मतलब क्या है? x रेस टू 0 है यहाँ पे। x रेस टू 0 यानी 1 होता है, बराबर? x रेस टू 0 यानी 1 होता है। x की वैल्यू 1 है तो भी 1 रेस टू 0 इज 1, 10 रेस टू 0 इज 1, 5 रेस टू 0, whatever you put, whatever value of x, you are going to get 1 here because रेस टू 0 is there. सो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा से कांस्टेंट रहेगी, इसके लिए हम इसे वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ओके, सो वन वन फंक्शन अगर नहीं है तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी और द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। इसमें हम टेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें -1 पुट करनी है, बाद में +1 पुट करनी है, और चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू कहीं सेम तो नहीं आ रही है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। ओके, सो सी, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूं तो -6 -7 दैट बिकम्स -13/6, बराबर? अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। अगर मैं +1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? -1/3 मिलेगा। इट शुड नॉट बी 6 ना, इट शुड बी 3 ना। यस, इट शुड बी 3। सो -1 के लिए मुझे ये वैल्यू मिले और +1 के लिए मुझे ये वैल्यू मिली। मतलब कि दो अलग अलग फंक्शंस के लिए दो अलग अलग इनपुट के लिए मुझे दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे मिली है। Okay, so this much testing is enough to clarify that this function is one one function. इसके बाद में भी अलग एक टेक्निक आपको दी गई है आपके बुक में कि कुछ तो आप x की जगह पे x1 रखो, x2 की जगह पे x2 रखो, ऐसा कुछ करना है। तो वो दैट इज काइंड ऑफ लाइक फॉर्मेलिटी थिंग। ओके, तो आप वो 2 लाइन
याद कर लोगे ना एग्जाम से पहले तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको वैल्यू रखने की टेक्निक बता रहा हूँ। ओके, तो टेक्स्ट बुक में आपको वैल्यू रखने की टेक्निक नहीं बताई गई है। सो दिस इज द टेस्टिंग मेथड कि आप एक बार -1 रखिए, एक बार +1 रखिए। अगर दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, -1 के लिए अलग है, +1 के लिए अलग है, दैट मीन्स दैट इज अ वन वन फंक्शन। नाउ लेट्स कम टू द ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के बारे में तो हमने इन दोनों में बात की ही नहीं, क्योंकि अगर ये वन वन ही नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता है, तो ऑन टू फंक्शन हम चेक करेंगे ही नहीं। लेकिन इसका ये वन वन फंक्शन है, ये तो टेस्ट हो गया। ओके, ये तो प्रूव हो गया कि ये वन वन फंक्शन है। नाउ वी हैव टू चेक whether this is a onto function or not. So onto function का मतलब क्या होता है, देखो f of x is equals to, मैंने आपको बताया है कि y होता है। So y is equals to 6x प्लस -7 प्लस सॉरी डिवाइड बाय 3। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा, बराबर, दिस इज राइट। y is equals to 6x minus 7 डिवाइड बाय 3। सो दिस इज द थिंग। नाउ ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन x के फॉर्म में है। सी y इज अ सिंगल टर्म हियर एंड x के साथ में कुछ तो अलग अलग टर्म्स है। तो अगर हम इस फंक्शन को कन्वर्ट करके अगर इस तरह से लिख सके कि सिर्फ x सिंगल टर्म रहेगी और y के फॉर्म में ये फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? देखिए y इज सिंगल हियर बट वी हैव सम कांस्टेंट्स और सम वैल्यूज विथ x। सो हमें क्या करना है, उल्टा करना है, x को सिंगल करना है और y के साथ में कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो सी व्हाट वी कैन डू, सी सेंड दिस 3 हियर। So 3y is equals to 6x minus 7। ओके, सो ये 7 अगर इधर जाएगा तो ये बनेगा 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6x। ओके, तो अभी इस 6 को मैं निकाल देता हूं यहां से और रख देता हूं यहां पे। यहाँ पे जो 6 था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो देख लीजिए मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसमें कि ये जो x है वो सिंगल टर्म है और y के साथ में कुछ वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर मैं किसी फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाता हूं, देन दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अगर मैं इस तरह से y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y के फॉर्म में मैं उसे रिप्रेजेंट कर पाता हूं, तो दैट इज ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे सिंगल x है और यहाँ पे कुछ तो y का फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो दिस इज ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। मतलब कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है ना। इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इनवर्स निकालने के लिए सिंपल टेक्निक क्या करना है, देखो आपने ये जो लास्ट में निकाला है x इज इक्वल्स टू समथिंग निकाला है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू समथिंग में आपको क्या करना है, एडिशनली मैं बताता हूं। x को रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स ऑफ x, मतलब कि f का इनवर्स, एंड y को रिप्लेस कर दीजिए x से। मतलब y की जगह पे आपको x रखना है और x की जगह पे f इनवर्स रखना है। It is needed after we test one function. Yes, it is must, it is must. Okay, when we test one function, after that we must check whether it is onto function or not। and onto function चेक करने का एक एडवांटेज ऐसा है कि देखिए मैं जिस स्टेप में चेक कर रहा हूं जहां मेरा कंफर्म हो रहा है कि ऑन टू फंक्शन है, उसी स्टेप में मुझे आंसर मिल रहा है। मुझे वन ऑन टू फंक्शन है कैसे पता चला, 3y प्लस 7 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू x आया, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो मैंने उसी फंक्शन में y की जगह पे x रख दिया, सो दैट इज द इनवर्स ऑफ आवर फंक्शन। सो दिस इज आवर इनवर्स। सी I'm circling this with the black color, that is our inverse। 3x plus 7 divided by 6 is the inverse of our given function। okay, तो पहले ऑन टू फंक्शन सॉरी वन वन फंक्शन चेक कीजिए, उसके बाद में ऑन टू चेक कीजिए। अगर दोनों भी सेटिस्फाई होते हैं देन वी कैन से द इनवर्स एग्जिस्ट। एंड इनवर्स एग्जिस्ट के क्या कंडीशन है कि जो ऑन टू फंक्शन हम चेक कर रहे हैं ना, तो वहीं पे आप y की जगह पे x रख दीजिए। at least no, don't exchange x and y, you don't have to exchange। okay, y की जगह पे आप x रखेंगे, y की जगह पे आप x रखेंगे, लेकिन x की जगह पे आप y नहीं रखेंगे, x की जगह पे आप रखेंगे f इनवर्स ऑफ x। समझ रहे हो, f इनवर्स ऑफ x मतलब कि f का इनवर्स, f inverse of x, not f of x। f inverse of x and f of x are different। yes, so this is how you can find out the inverse of given function।
सो इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं तो हूं ही यहाँ पे, ओके, गूगल क्लासरूम पे आप मुझे बता सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस फंक्शन, दिस एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल, ओके। इसमें क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, लेकिन दैट इज स्प्लिट फंक्शन, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है देखिए, अगर ये मेरी व्हाट वी कैन से ग्राफ है, ओके, एंड दिस इज आवर एक्सिस दैट इज 0, एंड ये फंक्शन स्टार्ट होता है, सी दिस इज फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जब ये x की वैल्यू 2 है तो ग्रेटर देन 2 के लिए कुछ अलग है, ग्रेटर देन 2 के लिए कुछ अलग फंक्शन है, और लेस देन 2 के लिए कुछ अलग फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे देखो, सिंपल, सी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। लेकिन अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शंस में से किस में रखना है हमें x इज इक्वल टू 3, कैन यू टेल इन द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, फर्स्ट वन में रखना है या फिर सेकंड वन में रखना है, x इज इक्वल टू 3 किस में रखना चाहिए हमें, फर्स्ट वन में या फिर सेकंड वन में, ऑब्जर्व कीजिए इस एग्जांपल को, बताइए मुझे। कैन यू टेल, हमें एफ ऑफ 3 निकालना है, सेकेंड वन में रखना चाहिए, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से जो बड़ी वैल्यूज है उसके लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड है, कौन सा, सेकेंड वन। सो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देता हूं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 15, 15 प्लस 7 दैट इज 22, सो 22 विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। नाउ दिस फंक्शन, ओके, एफ ऑफ 2 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, किसमें, फर्स्ट फंक्शन में, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 2, सो 4 प्लस 3 दैट इज 7, इसका आंसर 7 आएगा। एफ ऑफ 0, तो 0 किस में रखेंगे, दोनों में तो नहीं रख सकते, किस में रखना है हमें, पहले में ही रखना है, क्योंकि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x इज लेस देन 2, x लेस देन 2 यानी कि 2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, और 0 जो है वो ऑब्वियसली 2 से छोटी ही वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, ओके। सो देखिए स्प्लिट फंक्शन दिया था, लेकिन हमने थोड़ा सा ब्रेन यूज करके हमने इसे इजीली सॉल्व कर लिया, कोई भी मुश्किल नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया यहाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, isn't it? See, you can solve this. f of -4 निकालना है मुझे, f of -4 निकालना है, तो f of -4 के लिए मुझे x की वैल्यू किस में पुट करनी पड़ेगी, फर्स्ट फंक्शन में, सेकंड फंक्शन में या थर्ड फंक्शन में, विच फंक्शन बताइए, विच फंक्शन शुड आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, this is first, this is second, this is third, observe it and tell me. फर्स्ट में रखनी चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 से छोटी है, ओके, 3 से छोटी है, तो -4 इज स्मॉलर देन -3, so that's why I should put the value of x is equals to -4 in the first function. f is equals to -3 किस में रखूंगा मैं, वो भी फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा। f is equals to 1 किस में रखूंगा मैं, बताइए, f is equals to 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, which one I should I put the x is equals to 1, अभी f of 1 फाइंड आउट करना है मुझे, how you will find out, सेकंड में रखना है, लेकिन सेकंड में अगर आप देखोगे तो x की टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती है, बराबर, आप x की जगह पे 1 रखना चाहते हो, लेकिन वहां पे x है ही नहीं, so f of 1 is what, f of 1 is not defined, we can say, okay, what we can say, f of 1 is not defined, or let me just give me for few seconds, okay, so इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी, 5 will be the value of the function. Now for the fourth one, that is d, f of 5 के लिए हमें x is equals to 5 थर्ड में रखना पड़ेगा, क्योंकि x जो है यहाँ पे 3 से बड़ा है या फिर 3 के इक्वल है, तो x square that is 5 square that is equals to 25 will be the answer of the d,
Now for today's lecture, the last example we are going to take, and after that we'll stop. Okay. So see, f of x is equals to 2 mod of x plus 3x. So ये जो function है, see, mod of x is positive for x is greater than 0, okay, and x is negative for x is smaller than 0. समझ रहे हो? ये इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, मॉड ऑफ एक्स के लिए, समझ रहे हो? एक्स, एक बार हमें एक्स की वैल्यू एक्स रखनी है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एक बार हमें एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखनी है फॉर एक्स इज लेस देन 0. सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. किस तरह से देख लो, मैं पहले पॉजिटिव एक्स रखता हूं, एक्स प्लस 2x प्लस 3x. नाउ दिस विल बी वैलिड फॉर x is greater than 0. See, this function is valid for x is greater than 0. और अभी मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस एक्स रखता हूँ, सॉरी माइनस एक्स. सो माइनस 2x प्लस 3x, दिस इज वैलिड फॉर x इज स्मॉलर देन 0. समझ रहे हो? तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई, ये दो वैल्यूज हमें मिल गई. दिस इज 2x प्लस 3x फॉर x इज ग्रेटर देन 0. दिस इज माइनस 2x प्लस 3x फॉर x इज लेस देन 0. इस फंक्शन को हमने दो फंक्शंस में स्प्लिट कर दिया. ओके, इस फंक्शन को हमने दो फंक्शंस में स्प्लिट कर दिया. अभी f ऑफ 2 निकालना है आपको, तो कौन सा फंक्शन? यस, इट इज बिकॉज ऑफ मॉड. नाउ f ऑफ 2 अगर आपको निकालना है तो कौन से फंक्शन में आप उसकी वैल्यू रखोगे, उसका आंसर क्या होगा? बताइए जरा मुझे आप. f ऑफ 2 अगर आपको निकालना है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो आप किस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे और आपकी आंसर क्या आएगा? f ऑफ 2 निकालना है, इसमें रखेंगे या फिर इसमें रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे. व्हाट शुड बी द वैल्यू? व्हाट इज द आंसर? f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? should not take this much time, Suraj. Okay, x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 multiplied by 2 is, yes, very good, 10. 2 multiplied by 2 is 4. 3 multiplied by 2 is 6. 4 plus 6 is 10. Now f of minus 5 किस में रखेंगे? ये इस फंक्शन में रखना पड़ेगा. तो यहाँ क्यों? क्योंकि दिस इज डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, दैट इज x इज लेस देन 0. इसके लिए ये डिफाइंड है फंक्शन. तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे -5 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? -5 multiplied by -2, that becomes +10, not -10, +10, but यहाँ पे रहेगा -15. So the final answer will be -5. Okay, so this is how we have to solve the values, or this way we have to solve the example 8. Now for 9th and 10th, I'm going to give you a few hints. After that we'll close today's class, and 11th problem is a little hard, so we'll take that in the next lecture, and next lecture will be the last lecture on function chapter. Okay, so for this function, इस फंक्शन के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं. सी, क्या फाइंड आउट करना है हमें? f of x is equals to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x minus 3 फाइंड आउट करना है. ओके, सो f of 7.2 फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे? x की जगह पे यहाँ पे सिर्फ क्या रखना है आपको? 7 रखना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर रखना है ना. फ्रैक्शनल पार्ट को निकाल दो, f of 7 निकालना है. यहाँ पे f of 0.5 निकालना है, मतलब f of 0 निकालना है एक्चुअली. यहाँ पे f of -5/2 निकालना है, मतलब f of -2.5 निकालना है, विच इज इक्वल्स टू f of -3 निकालना है. सी, दिस इज f of -2.5, बराबर. और -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है -3. सो आप f of -3 निकालेंगे. इस x की जगह पे अगर आप -3 रख देते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. और f of 2π निकालना है. 2π यानी कि क्या? 2 multiplied by 3.14, that is 6.28. So f of 6 निकालना है एक्चुअली. See, f of 7, f of 0, f of -3 and f of 6 निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली फॉर दिस, इस x की जगह पे आपको क्या रखना है? फ्रैक्शनल पार्ट रखना है. ओके, फ्रैक्शनल पार्ट आपको यहाँ पे रखना है.
तो या इस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे -1 ही आएगा। सी 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 ही आएगा, आपको x की जगह पे -1 ही रखना है, लेकिन इस ब्रैकेट में आपको सिर्फ उसका फ्रैक्शनल पार्ट रखना है, समझ रहे हो? सो इट शुड बी लाइक दिस। आफ्टर दैट f of 0.24, सी दिस इज f of 0.24 है एक्चुअल में, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आप रखोगे f 0.2 रखोगे और यहाँ पे भी 0.25 ही आप रखोगे। यहाँ पे आप देखिए दिस फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन अगर आपको f ऑफ -1/2 निकालना है, f ऑफ -1/2 निकालना है, सॉरी f ऑफ -1/2 निकालना है, तो आपको इस यहाँ पे माइनस, सॉरी नॉट माइनस, 0.8 रखना पड़ेगा, 0.8 रखना पड़ेगा और यहाँ पे आप रखोगे -1.2। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक द 11th क्वेश्चन एंड देन द रिवीजन। दिस लेट्स रिमेंबर द थिंग, ओके, ये भी हमें लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय पर्सपेक्टिव। So that's it for today, guys, and I hope you were able to understand whatever I was trying to tell you, okay, and just keep revising. So next lecture will be mostly on Friday में हमारा lecture रहेगा next, and in that lecture we'll try and finish this chapter. After that mostly we'll try to start the chapter determinant and matrices and the probability chapter, okay. तो maths 1 में हम यहाँ इसके बाद में चले जाएंगे। मंगलम सर आपको सिखा रहे हैं matrices and determinant, I know that, but I want to teach you that, so that's why I will be teaching you that, okay. So ठीक है, आर्या ने तो लेफ्ट भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सूरज थैंक यू एंड बाय बाय, चलो बाय।